Okay, so uh, what we have seen in the previous practical session is that what we have to do in the first experiment, that uh, we will have some opcode table, symbol table. So these tables we have to store into the data structure. Okay, and what input will be provided. Okay, so this program, okay, it's provided as an input, and we have to convert this program, okay, that is the uh, assembly language program, into the different kinds of tables, like the symbol table, mnemonic opcode table, literal table. Okay, so everything that is present in symbol table, mnemonic opcode table, and literal address table is present into this program, this input. Okay, I will expand it, then you can clearly see. Okay, so this is your input. Okay, and the symbol tables, mnemonic table data, the data is present into this input. Okay, so you can see some symbols here, like the label, then loop, then a and b, these symbols you can see, and some mnemonic operations. Okay, so and their opcodes we have to find in the mnemonic opcode table. Okay, but these mnemonic keywords, that is read, move, are that we are taking from the input at the center part, you can see here. Okay, so this movem, this is ltop. Okay, read, ds, dc. Okay, what are they are the mnemonic keywords. Okay, so or you can say that they are the action keywords, right? So we will see the program now. We have to actually get these keywords, these mnemonic keywords, the symbols from this input, and we have to store into the particular data structure. Okay, so what we have to do in the program, okay, that you have to see. The program is ready actually. Okay, so we have to just uh, learn what is going in the program. Okay, so uh, first of all, leave it package these things. These are the basic things. Import the Java input output library. Okay, that same you learn into the C language. What you do, hash include stdio dot h, like these things. Okay, so input output library you have to import. Then as object oriented programs is, you have to create a class. Okay, so here you can give any name to the class. Okay, but the file is file name should be same. Okay, so here you can see what is the file name, simtab.java. Okay, and actually the file name should be pass1, but leave it the here the file name is simtab, because class was simtab. Okay, so that's why I needed to take the file name as simtab. Okay, so Java file name should be the class name. Okay, class name जो होता है वही चाहिए होता है आपके जावा का, उस जावा का फाइल नेम. ओके, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. Now this input file is already present. Okay, so that you can see the users desktop input.txt. Okay, so in the desktop we will find that file, that is input.txt. Okay, so this is the file. Are you all able to see this file? Yes, sir. Okay, so this is the input file. Yes, sir. This is the assembly language program we are providing to the our program. Okay, and that should be converted to different kinds of tables. Okay, so here what we are using, that is file reader. FP object is created and new file reader, and we are giving just the path of our program. Okay, and then we are introducing the buffer reader class. Okay, and we are passing that FP to that buffer reader class. Okay,
that is inbuilt class. Okay, that is the way you have to read the file. Okay, so every time in a Java program, if you have to read a particular file, you have to write such a kind of thing. Okay, so this is very simple thing to get the data from the फाइल. ओके, अगर फाइल में आपका इनपुट डेटा है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है. ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि that is different variables we required within the program, that is line count, location counter. This is LC means what? This is the location counter. Okay, where we require this location counter, suppose this input file. Okay, and location, suppose this is 100. Okay, means it is starting from the 100 location. Okay, so this next location should be 101, 2, 3, 4, 5, 6, like that it goes. Okay, so 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so in this way this location counter will be incremented. Okay, so another different symbols we require, that sim tab line. Okay, op tab line, literal tab line, and full tab line. Okay? So initially we set all the to the 0. Okay, initially suppose 0 set करना है. Then max. Okay, last लास्ट सेशन में किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये मैक्स के बारे में, तो मैक्स जो है हमने इनिशियली इसको 100 स्टोर कर दिया है. ठीक है, राइट. तो उसका साइज है, ठीक है, जो भी ये वेरिएबल्स हम आप लोग यूज कर रहे हो, सिम टैब, ऑप टैब, तो इसका जो साइज है, ठीक है, तो वो होगा 100 रोज का. ठीक है, उतना साइज यूज नहीं होता है ऑब्वियसली. यहाँ पे आप इनपुट फाइल में देख रहे हो, ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसमें तो इतने लाइंस यूज नहीं होंगे, लेकिन हमने साइज दे दिया. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हम लोगों ने 100 का साइज दिया है और हम लोग 20 का साइज उसमें से यूज कर रहे हैं. ओके, so size given is more than the size required. Okay, so 100 size is given, so any input of 100 lines we present, then the program can give the output. Okay, so these different data structures we require, and at the last we have to print these data structures. Okay, if you see at the last, you can see here we print these data structures. Okay, here you can see lead tab. Okay, then this is op tab. Okay, op tab next location. Okay, I1 means I0 means this is first location, I1 second location, and I2 is third location. Okay, this same tab. So end part of the program is to print this data structure. Okay, the initial part of the program is to initialize the data structure, getting it, and end part is to display the data structure, and in between what will happen, we have to fill that data structure. Okay, so these are the tables. Okay, what are those? There means in program we needed to take in the string form. program में हमें उसको string के form में लेना पड़ा. ठीक है, कौन सा एरे है वो? 2 डायमेंशनल एरे. ओके, स्ट्रिंग का 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि इनपुट आपका उसी में आना है ना, 2 डायमेंशनल एरे में, क्योंकि टेबल फॉर्म में आपको डेटा डिस्प्ले करना है, तो वो क्या हो गया आपका 2 डायमेंशनल एरे हो गया. तो इसीलिए आपको ये जो वेरिएबल्स है वो 2 डायमेंशनल एरे में ही आपको लाए. तो एंड में आप प्रिंट करोगे तो वो 2 डायमेंशनल टेबल में वो एरे में वो प्रिंट होगा. ठीक है, right. So this is showing the yellow line. So I have given this, but I think throughout the program there is no use of this. I just taken it if required, that extra variable I have to. Okay, so leave this part. Then next one is this, just print one print line is there, that you can see in the print part. Okay, here. Okay, this line, getting it? This is that line. Okay, printing. Then while line equal to buffer reader dot read line, okay, not equal to null. Okay, तो जब तक ये कब तक आपको एग्जीक्यूट करना है ये पार्ट, जब तक आपका जो आप जो लाइन रीड कर रहे हो, ठीक है, इनपुट में, ठीक है, मतलब कंपाइलर जो लाइन रीड करेगा वो जब तक नील नहीं होता है, जब तक वो आपको लाइन मिलते जाता है, तब तक आपको क्या करना है, उसको
रीड करना है और लाइन में उसको स्टोर करना है। ठीक है, ये लाइन वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे स्ट्रिंग लाइन आपने लिया था, इनिशियली नल लिया था, और यहाँ पे वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स दो कि इज इट गोइंग फाइन या फिर कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। आर यू ऑल लिसनिंग ना? Yes, sir. ओके फाइन। तो आप क्या कर रहे हो, लाइन में आप यहाँ पे डेटा वहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, बफर रीडर में आपने वो लाइन डाला है शुरू में, यहाँ पे देखो बफर रीडर, इसमें आपने वो फर्स्ट लाइन लिया था ना। ठीक है, तो पूरा पूरा जो इनपुट है, ठीक है, वो पूरा आपको समझ नहीं आया, आप लाइन बाय लाइन उसको समझो। तो इनिशियली आप क्या समझो, सिर्फ यहाँ पे एट द फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो ये पहला वाला लाइन रीड करेगा। ठीक है, कौन सा है पहला वाला लाइन? स्टार्ट 100। गॉट इट। ठीक है, इनिशियली वो उसमें वो डेटा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे लाइन में देखो कुछ यहाँ पे कुछ लिटरल्स होते हैं, कुछ यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब पहले वाली लाइन में तो नहीं है, लेकिन आगे वाली लाइंस में ऑब्वियसली है। ठीक है, तो लाइन में क्या 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 आ सकता है? ठीक है, ये देखो, ये आपका इनपुट है ना, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन। तो लाइन में आपका क्या क्या आ सकता है? लिटरल आ सकता है, देखो यहाँ पे लिटरल्स है। ठीक है, लाइन में क्या आ सकता है आपका फिर? यहाँ पे ये रीड मूव ये आ सकता है, जो आपको निमोनिक को आपको टेबल में डालने हैं। फिर आपको सिंबल्स आ सकते हैं। ठीक है, लेबल, लूप। ठीक है, लूप ए बी ये आपको किस में डालने? सिंबल टेबल में डालने हैं। ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो इनिशियली ये क्या हो रहा है, लाइन इक्वल टू पहला एट द स्टार्ट क्या होगा, ये रिपीट होगा, व्हाइल स्टेटमेंट है ना, तो ये बार बार रिपीट होगा। कब तक रिपीट होगा? जब तक आपकी जो लाइन है वो खत्म नहीं हो जाती, लाइन उसको मिलती रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट रन में वो क्या करेगा, पहला लाइन देगा। ठीक है, तो जो भी लाइन लेगा उसको क्या करना पड़ेगा, इसको वहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन स्प्लिट का यूज हुआ है। ठीक है, और उसको आपको टोकन्स में वहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, टोकन्स में आपको उसको वहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, स्प्लिट करके। ठीक है, गेटिंग इट। तो आपने क्या किया, स्प्लिट यहाँ पे कैरेक्टर टू कैरेक्टर, START, इसको स्प्लिट किया और किस में डाल दिया, टोकन्स में डाल दिया। और ये स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, तो टोकन एक ही कीवर्ड है क्या? ठीक है, टोकन्स एक ही कीवर्ड को, सॉरी एक ही लेटर को स्टोर कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये एरे है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे देखो टोकन्स, टोकन्स में ये स्प्लिट करके सारे इस एरे में जो लाइन के लेटर्स थे उसको हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ये हाई प्रिंट हो रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे मैं चेक कर रहा था। हाँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया, देखो ये वाला हाई यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हम्म, यहाँ पे देखो, दिस वन। ओके, यस Yes. और नो? हाँ, ठीक है, तो वो भी बता दूं मैं आपको, ये यहाँ पे क्यों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो टोकन्स में डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे लेटर्स लाइन के स्टोर रहेंगे। ठीक है, तो आगे क्या करना है, हमें लोकेशन काउंटर पहले सेट करना है। ठीक है, तो लोकेशन काउंटर क्या किया आपने, लोकेशन काउंटर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये छोड़ दो, ये क्या करता है सिर्फ, ये इसको सिर्फ ध्यान में रखो। ये जो है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये जो है उसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन काउंटर क्या रहेगा आपका, लोकेशन काउंटर आपका इंटीजर डेटा है ना, राइट। और ये जो यहाँ पे 100 भी क्या है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये सारा डेटा क्या है, टेक्स्ट डेटा है। सारा डेटा तो जो वो है लाइन मतलब टेक्स्ट डेटा है। इंटीजर डॉट पास है मतलब वो टाइप का स्ट्रिंग है। एनीबडी इज आस्किंग क्वेश्चन? हेलो सर। आई थिंक someone is asking question with respect. हेलो। Okay, Shubham, you asked the question. यस सर। Okay, tell me your question.
सर ये इंटीजर डॉट पारसेट है ना सर, ये टाइप कास्टिंग कर रहे हैं सर। यस 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 राइट, इट इज अ टाइप कास्ट बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो 100 है ना, ये टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा है। कौन सा डेटा है यहाँ पे? वो एज अ टेक्स्ट है। आप कभी एक्सेल में गए हो क्या? एक्सेल में आप डेटा फिलअप करते हो, ठीक है? तो कभी एक्सेल के टैब पे राइट क्लिक करके देखना और फॉर्मेट सेल में जाना, ठीक है? और फॉर्मेट सेल में जाके वहां पे वो नंबर ऑफ टाइप्स आते हैं कि जनरल, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, अकाउंट। तो कौन से टाइप का आपका डेटा है, ठीक है? तो आप उसको टेक्स्ट डेटा अगर सेट करते हो तो 100 एज अ टेक्स्ट स्टोर होगा। टेक्स्ट स्टोर होगा मतलब क्या कि उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, ठीक है? तो आप 100+1 करोगे तो 101 नहीं होगा, क्योंकि 100 क्या है? टेक्स्ट डेटा है, न्यूमेरिक डेटा नहीं है। आ रहा है समझ में? वैसे सेम चीज यहाँ पे क्या है, 100 इट इज अ टेक्स्ट डेटा। तो इसको आपको लोकेशन काउंटर हर बार इंक्रीमेंट करना है ना, तभी आपको आएगा कि रीड का लोकेशन काउंटर क्या है, ठीक है? मतलब उसका वो एड्रेस रहेगा, मूव आर कौन से लोकेशन पे है, ठीक है? तो ये यहाँ पे स्टार्ट 100 अगर लोकेशन पे है, तो अगले लाइन के जो आपके ऑपकोड्स होंगे जिससे बोलेंगे वो कौन से लोकेशन पे, तो आपको वो चेक करने के लिए लोकेशन काउंटर हर बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और लोकेशन काउंटर अगर इंक्रीमेंट करना है तो लोकेशन काउंटर किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, राइट? टेक्स्ट फॉर्म में होगा तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे वो पारसेंट किया गया है उसको, ठीक है? और टोकन 1 क्यों बोला यहाँ पे? कोई भी एक आंसर दो, एनी स्टूडेंट। आगे जो 100 लिखा है ना उसको रीड करने के लिए। हु इज टॉकिंग? योर वॉइस इज ब्रेकिंग बैडली। आपकी So in the आवाज first row we need to get second column. Avdut, we are all not getting your voice clearly. Can you give the answer in chat box? Give the answer in chat box. Okay, I think he's typing till we move forward. Okay, why? Okay, I think to find one row and second column, which is starting address. Yes, right, Avdut. Because we have done the line splitting here. Okay, और स्लैश टी, ठीक है? स्लैश टी से हमने उसको क्या किया? स्प्लिट किया। स्लैश टी से स्प्लिट करना मतलब क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपको ब्लू मार्क नजर आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे किया है। जो ब्लू मार्क अभी मैंने यहाँ पे आप में शो किया है, वो नजर आ रहा है आपको? एक्चुअली आई